ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਤ ਮਾਨਯੋਗ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੋ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਸਾਈਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਤੱਕ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਮੀਨ ਮੈਂ, ਹੋ ਮੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਬਿਨਸਦਾ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੇ, ਪੁਰਖੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਪੁਰਖੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਨਰਕ ਦੀਆਂ, ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਅਰਸਤੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਿਨੂਟਲੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਜੀਵ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ
सहज प्रवृत्तियां नाल संघर्ष करना पैंदा है। इस लई मनुख नूं एक कोड ऑफ कंडक्ट जिन्हों असी मर्यादा कह सकते हैं, आचार सहनता कहते हैं, उहदी जरूरत पैंदी है। एक दायरा बनाना हुंदा है। एक कोड ऑफ कंडक्ट ही मनुख नूं सैल्फ डिसिपलिन जिन्हों सवे अनुशासन कहते हैं या समाजिक अनुशासन जिन्हों कहते हैं सोशल डिसिपलिन मुहैया कराती है। और केवल ते केवल ये जिहड़ियां ये अनुशासन है, डिसिपलिन है, ये वर्चूज नाल सदगुणा नाल ही संभव है। देखो जी, गुरु नानक दा धर्म जिहड़ा गुरु नानक साहब ने धर्म शब्द का प्रयोग किया है वो सिर्फ केवल नैतिकता ते सदाचार लिए किया है। और बड़ी नोट करने वाली गल है कि धर्म शब्द कदे भी किसी मजहब या फिरके लिए नहीं वरत्या गया। गुरु नानक दा धर्म सहज है, गुरु नानक दा धर्म अनुशासन है। देखो मनुख एक जिवें असीं पहले कहा एक सोशल प्राणी है ते समाज मनुखां दे इकट्ठ नूं कहंदे ने। हुण हर मनुख दी शख्सियत समाज ते प्रभाव पाउंदी है। इसे तरह जिस समाज विच मनुख विचरदा है उसका प्रभाव उसकी शख्सियत कबूलदी है। यह वाइस वर्सा है। मनुख दी शख्सियत का प्रभाव समाज ते पैंदा है और समाज का प्रभाव मनुख की शख्सियत ते पैंदा है। और समाज नूं उच्चा लिजाण विच मनुख की जीवन शैली का बहुत वड्डा एक योगदान हुंदा है। और अते जीवन जुगत का संकल्प ही ये अजिहा संकल्प है जिसका दायरा, जिसका खेतर बहुत वाइड है, विस्तृत है। मनुख जीवन नूं जिवें मैं पहले कहा किस तरह बतीत किया जाए, जीवन में की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, इसका जवाब सानू जीवन जुगत के संकल्प नूं समझन, जीवन जगत के संकल्प नूं जदों असीं समझांगे सानू उहदे च मिलेगा। और एक ऐसा संकल्प है जीवन जुगत की मैं गल कर रहा जिसका विशा खेतर धरती आकाश दे विचकार जो कुछ भी विद्यमान है तक विस्तृत है। देखो एक गल है, ब्रह्म इस संसार और जीव या जीव इस संसार ते ब्रह्म दोनों दे जदों असीं दोनों कह रहे हैं, पहले ब्रह्म है, फिर धरती है, संसार है और फिर जीव है, या कह लीए जीव संसार ते ब्रह्म, इन्हां दोनों हालातां दे विच जिहड़ा संसार है वो सेंटर विच आ रहा है। और इसे सेंटर वाले संसार नूं गुरु नानक ने धर्मसाल कहा, यानी धर्म कमान दी जगह। तो गुरमत जुगत शब्द जिहड़ा है ये जीवन जुगत लई प्रचलित है। गुरबाणी विच जीवन दे वख-वख पक्षां दा उल्लेख है, जिवें मनुखी जीवन दा मनोरथ की है, जीवन विच किहड़ियां अध्यात्मक ते सदाचारक कीमतां नूं जीवन विच ग्रहण करना चाहिए है, ये सानू आम तौर ते बाणी दे फरमान चों मिल जांदा है। लेकिन जीवन जीण दे दो ढंग उन्होंने बड़ा समझना पएगा कि जीवन जीण दे दो ढंग ने। एक है संघर्ष वाला, संघर्ष का मतलब आपाधापी, और एक ढंग है समर्पण वाला। संघर्ष माने जिहड़ा संघर्ष का तरीका है जिहदे च आपाधापी है, उहदे च आई मी माई कल्चर है, उन्होंने होमे कह लो। दूजा समर्पण दा है, वो है हुक्म वाला, हुक्म मनन वाला। तो अज दा साडा विशा होमे तो हुक्म तक दी यात्रा, तो उहदे लई बड़ा खूबसूरत एक बाणी का फरमान है, होमे जाई ता कंत समाई, फर्स्ट रेडी गो देन मर्ज विद लॉर्ड, विद होमे यू कैन नॉट मर्ज विद लॉर्ड। बड़ी सीधी ते स्पष्ट गल है। देखो दो प्रकार दियां मनुख दियां मानसिकता की दशा का फर्क समझिए। सॉरी, एक पासे तो जिसनों आपा प्यारा है, जिहड़ा स्वार्थी है, जिहड़ा आई मी माई च वरतदा है, और दूजा जो आपा अपना भुला के परमात्मा के बाणे विच रहिंदा है, जीवन बतीत एक आदर्शक तरीके नाल, नैतिकता नाल, संस्कारां नाल करदा है। ये दो तरीके दे ने, और ये दोनों तरीकिਆਂ नूं बाणी दे विच तुसीं देखो किन्नी खूबसूरती नाल कही है। जिहड़ा होमे विच रहिंदा है उहदे लई बाणी कहंदे ने कि वस्त पराई अपनी कर जाने, महला पहला दा शब्द है, वस्त पराई अपनी कर जाने, होमे विच दुख घाले। ये हुण होमे विच जिहड़ा है उहदे लई है। और जिहड़ा उस हुक्म नूं मन्नण वाला है वह है जो तो दबावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये हुण हुक्म दा कंसैप्ट है। देखो हर वस्तु अपने कंट्रोल विच रखना, होमे विच रखना, ये मनुख दी साइकी है, मनुख दी प्रवृत्ति है। वो एक है ना कोटेशन, ए बर्ड इन ए केज इज ह्यूमन लव, कि एक पिंजरे दे विच पक्षियां नूं अपने इंटरेस्ट लई, अपने
ਚੰਗਾ ਜੋ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਉਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਏ ਬਰਡ ਇਨ ਏ ਕੇਜ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਲਵ, ਏ ਬਰਡ ਫਲਾਈਂਗ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਗੋਡਸ ਲਵ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਹੋਮੇ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋਮੇ ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਹੋਮੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੇ। these 5 vices are God created, you cannot vanish। तो ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੋਮੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵੈਨਿਸ਼, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਮੀ ਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਮੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਤੇ ਹੂੜਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਸਵੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਵੇ ਹੋਮੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ। ਇਹ ਖੁਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਮੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਨ ਜਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਤ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਜ ਤੇ ਅਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਤ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਚਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਹਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਚਦਾ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। एक घाल खाए कि छत्थों दे।
जिस वेले बंदा अपनी चीज वंडन की प्रवृत्ति च आ जाएगा, देखो जिहड़ा किरत करना, नाम जपना, वंड छकना है, इनू समझना भी बड़ा जरूरी है। मैं चाहांगा कि आप एक लैक्चर इहदे ते भी करांगे। तो मैं जिहड़ी दर्शन की गल कर रहा सी, गुरु नानक दा दर्शन, उन्होंने समझण लई मैं कुछ जिहड़ी गल करना चाहांगा कि ब्रह्मंडी कुदरत दे कण कण विच, जर्रे जर्रे विच परमात्मा दी, ब्रह्म दी होंद किसे नियम राही प्रगट हो रही है। हर चीज दे विच कुदरत विच बलिहारी कुदरत वसिया। तो मनुख दे मन विच चेतना दे विच झूठे भरमां दा पसारा है, क्योंकि मनुख अपने मन राही, अपनी मर्जी राही चलदा है। मनुख का एक मनोविज्ञानिक नियम है कि विशफुल थिंकिंग, मनुख वही करता है जो उसके मन में आता है, ना कि जो सच के आधार होता है। इसनों मनमुख कहा जाता है। गुरबाणी विच, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उसके हुक्म, उसके नियम राही जिंदगी जीवन की ताकीद की गई है। कुदरत नाल एक सुरता की गल जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, बाणी दे विच कीती गई है। मनुखी दुख सुख इन्हां नियमां दा अंग ने। मैं पिछले लैक्चर कहा सी कि जिहड़ा कुदरत अनुसार अपनी जिंदगी गुजारेगा वो पुण्यवली है, जिहड़ा कुदरत नूं वायलेट करेगा वो पाप है। तो इन्हां नियमां दे उल्ट जीना, कुदरत दे नियमां दे उल्ट चलना, या कुदरत दे नियमां दे अगेंस्ट विचरना, वो कहंदे वो आवागमन है जो जन्म मरण दे भरमां दे विच सानूं पा दिंदा है, और कोई भी इन्हां नियमां तो बाहर नहीं जा सकता। देखो साडे जिहड़े सुख दुख ने, दुविधावां ने, दुविधावां विचों, प्रॉब्लमां विचों सिੱਖਣਾ हुंदा है। दुख सुख जीवन का एक अंग है। मैं कह सकदा दुख सुख जीवन का एक रंग है ना। दुख दारू सुख रोग ब्या, जा सुख ताम ना होई, रोज पढ़ते हैं। इनू जरा अंदर तक इनू समझिए, एक कथन की बड़ी डूंघाई तक पहुंचना चाहिए। गुरु नानक साहब ने जीवन पद्धति ते चानन पा रहे ने इस लाइन दे विच, दुख दारू सुख रोग ब्या। गुरु नानक साहब जिहड़ी वे ऑफ लाइफ की गल कह रहे हैं, सुख विच, सुख सुविधावां विच मनुख जीवन की जिहड़ी रियलिटी है उसनूं विसार के विलासता विच रुचित हो जाता है। ये असीं आस पास देख रहे हैं, ये जीवन रोग है। और जदों मनुख दुख ग्रस्त हो जाता है तां बेबस हो जाता है, परमात्मा याद आउंदा है। जदों बंदा दुखी हुंदा फिर परमात्मा याद आउंदा है, सुख विच नहीं आंदा। फिर इधर उधर देखदा है कि मैनूं कोई हैल्प करे, फिर सहायता लई पुकारदा है परमात्मा नूं। ते उहदे लई भी बाणी दे विच शब्द है, दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। इस दुख नूं ही दारू किया गुरु साहब ने, इसे नूं ही मैडिसिन किया। परमात्मा दा एहसास ही जिहड़ा है ना, आखां जीवां विसरे मर जाओ। तो परमात्मा दा एहसास मनुख लई पॉजिटिव थॉट है। जिहड़ा ये नाम है, जिहड़ा परमात्मा दा अंदर एहसास है, वो पॉजिटिव थॉट ने। अते जिस विच पॉजिटिव थॉट आ जान तां फिर की हैगा, ताम ना होई, यानी दुनियावी सुख दुखां दा उहदे ते फिर कोई प्रभाव नहीं पैंदा। तां कह दुख दारू सुख रोग ब्या, जा सुख ताम ना होई। देखो हर मनुख विच तीन चीज़ां समांतर चलदियां ने। वो तीन चीज़ां ने, एक नेकी, दूजी बदी और एक शक्ति। नेकी दे प्रतीक देव है, बदी दा प्रतीक दैंत ने, और शक्ति जिहड़ी है आम तौर ते अध्यात्मक शक्ति कहंदे ने, इनू दुर्गा दा प्रतीक, जिन्हों जिहड़ी दुर्गा है इसनों असीं हिंदुइज्म दी टर्म विच ना लईए, दुर्गा एक्चुअली शक्ति दा प्रतीक है। तो गुरमत अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये पांच दैंत ने जो मानव दे देवतित्व नूं दे राह दे विच चलण विच रोड़ा बनदे ने। हुण यही संघर्ष चल रहा है नेकी ते बदी दा, दे तत्व ते दैंत दा संघर्ष मनुख दे अंदर भी है ते बाहर भी असीं देख रहे हैं। तो बाहर दी जिहड़ी सदीवी ये चलदा रहिंदा है। ये जिहड़ा आपसी संघर्ष है चंगियाई ते बुरियाई दा, नेकी ते बदी दा, दैंत ते देव दा, ये चल रहा है। जरूरत इसनूं अध्यात्मक शक्ति द्वारा जिहड़ा है उसनूं डिसिपलिन करन दी है। चीज़ां रब ने तुहानूं तीनों चीज़ां दित्तियां, नेकी भी है, बदी भी है, नाल उसनूं दूर करन दी शक्ति भी दित्ती है तुहानूं। जरूरत उस शक्ति नूं डिसिपलिन करके, जिहड़ी एनर्जी रब ने तुहानूं दित्ती है उस एनर्जी नूं डिसिपलिन करके, ये जिहड़ी हुमे है ये एनर्जी है, काम एनर्जी है। ये सारियां काम जिहड़ियां लोभ मोह अहंकार ने, ये सारियां एनर्जीज ने। मनुख अपने आप विच
एक छोटा जो कहते ना ब्रह्मंड है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। कुछ विद्वान मनुख दे ते ब्रह्मंड दे रिश्ते नूं माइक्रोकोस्म ते मैक्रोकोस्म भी कह देते हैं। हुण क्योंकि मैटलिज्म या पदार्थ मनुख की रचना का अंग ने, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ये जिहड़े ने ये मनुख विच आनियां सुभावक ने, क्योंकि ये पदार्थां नाल जुड़ी हुई ने। ते मनुख विच जिहड़ियां ये पंज जिहड़ियां ये पदार्थां करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ने, जेकर मनुख इन्हां कमजोरियां नूं अपने आप ते छड्ड देवे तां मनुख पशु पद्धर ते गिर गया, जे उन्हां नूं अपने आप ते हावी होण देवे। और जे मन मारेगा, जीवत मर जाने की गल होई, जे मन नूं डिसिपलिन कर लेगा तो फिर वो सुख वाली गल हो जाएगी। मैं गल कीती सी गुरु नानक दे फिलोसफी दी, गुरु नानक दे दर्शन दी, ते गुरु नानक दे दर्शन दा कितना खूबसूरत एक मिसाल है कि एक ओंकार दी जिहड़ा संकल्प है, ये जिहड़ा मैं कहा सी ब्रह्म, जगत ते जीव, ये जिहड़ी दो गल्लां ने ना, आंदे उत्थों भावें शास्त्रां तो ने, द्वैतवाद ते अद्वैत। जिहड़ा एक ओंकार है ना, एक ओंकार दा जिहड़ा न्यूमेरिकल 1 है ये निर्गुण है, ओंकार जिहड़ा है सरगुण है। एक जिहड़ा न्यूमेरिकल है ये अकाल है, ओंकार जिहड़ा है ये काल है। इसे तरह जिहड़ा ब्रह्म, जगत ते जीव, ये तीनों एक ओंकार ने। इन्हां दे विच जिहड़ी है ना एक सुरता, ये जिहड़ा एक ही है, ये दोनों, इन्हां नूं समझना पएगा। गुरु साहब हुक्म दी, नियम दी, बुझण दी जुगत दस रहे हैं, अते जुगत जिहड़ी है वो आ गई तो फिर जिहड़ी होमे नूं डिसिपलिन कीता जा सकदा है। तो अपनी सदीवी होम ते भरम दा ज्ञान हो जाता है। हुण मैं जिहड़ी गल कर रहा सी कि जिन्ने भी हिंदुइज्म दियां फिलोसफीज ने उहदे चों कह रहे ने कि जिहड़ियां 5 वाइसिस ने ये वैनिश हो जान, इहनूं खत्म कर देवे। मैं उहदी कोई मिसाल देंगा कि दीज ऑल वाइसिस आर क्रिएटेड बाय गॉड, मैन कैन नॉट वैनिश इट। तो उहदे लई बड़ा खूबसूरत एक गल है कि वाटर इज कमिंग डाउन, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यू कैन नॉट स्टॉप इट, बट यू कैन डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ दैट वाटर। ये जिहड़ियां 5 जिहड़ियां ने वाइसिस, इन्हां भी बड़ा जरूरी है समझना। जिहड़ा काम है एक्सपेंशन ऑफ जीवां लई है, काम, क्रोध जिहड़ा है सैल्फ रिस्पैक्ट लई है, लोभ जिहड़ा है ये अपने परिवार नूं पालण च बड़ी जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह परिवार लई मोह होना भी है, मानवता लई, पूरी मनुखता लई भी मोह चाहिए। ते हंकार जिहड़ी है वो हंकार जिहड़ा है वो तुहानूं, हंकार सैल्फ रिस्पैक्ट है, और जिहड़ा क्रोध है वो जिहड़े दैंत ने, जिहड़ी बुराई है बदी नूं ठीक करन लई, जिथे जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिहड़ी वो किरपान दी गल कीती, जिहड़ी वो खंडा चलान दी गल कीती, या जिहड़ी देग तेग फतेह कही। देग तेग फतेह हुण ये चलिया ते मैं देग तेग फतेह दा भी शायद पहले कोई गल हुई कि नहीं, कि देग फतेह लंगर है। गुरु साहब ने सानू हुक्म कीता है कि दुनिया विच कोई भुखा नहीं होना चाहिए, विक्ट्री ओवर हंगर। देग फतेह, तेग फतेह है। तेग जिहड़ी है ये एक प्रतीक है इनजस्टिस ते जस्टिस लियाण लई। ते गुरु साहब सानू कह रहे ने कि दुनिया विच किथे भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो विक्ट्री ओवर इनजस्टिस। तो ये जिहड़ियां मैं गल्लां कीतियां ने कि जिहड़ियां 5 वाइसिस ने ये मनुख की शख्सियत लई बड़ियां जरूरी ने। तो अपनी सदीवी होने ते भरम का ज्ञान हो जाता है, और ये 5 वाइसिस नूं डिसिपलिन करना है, क्योंकि रियलाइजिंग हुक्म मीन्स रियलाइजिंग द ट्रू एसेंस ऑफ द सुप्रीम बीइंग, गॉड नूं समझना है। हुक्म नूं एक डिवाइन ऑर्डर है। हुक्म एक जिहड़ा पंजाबी वर्शन जिन्हों बाणा कह दिंदे आ, बाणा शब्द संस्कृत है और यह शब्द भावना तो आया है, डिवाइन विल इसका मतलब हुंदा है। तो बाणा मनन दे अर्थ हन कि मनुख परमात्मा दे हुक्म नूं जो संसार विच वरत रहा है सिर मत्थे ते मन्ने। और सिक्खी विच, सिखिज्म दे विच, गुरमत विच इस तरह अपनी जिंदगी जीन नूं रजा दी जीवन कहते या हुक्म मनन वाली गल करते हैं। देखो गुरु नानक साहब ने जपजी साहब दे विच हुक्म दियां पौड़ियां ने, ते गुरु नानक साहब ने हुक्म ते रजा 2 शब्द यूज किए ने। हुण हुक्म या रजा दोवें फारसी भाषा के शब्द ने।
इस दा जिहड़ा अर्थ है रब्बी अनुशासन। हुक्म परमात्मा की रजा का सूचक है अते उस जुगती विधि या विधान का भी सूचक है जिस अनुसार परमात्मा की मर्जी काम कर रही है, इस पूरी सृष्टि ਨੂੰ चला रहा है। हुक्म इज द वर्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं। और जपजी विच जदों कहा हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इहदा की मतलब है? इहदा है कि सच पद की प्राप्ति लई सतपुरख पार ब्रह्म दे हुक्म ते रजा विच विचरना ही इक्को ऐसा नियम है जिस नाल जीव नूं सचार पद प्राप्त हो सकता है। प्रश्न भी यही कीता सी कि किव सचारा होई है कि कूड़े टुटे पाल। अगों जवाब सी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुण सवाल यह है कि गुरु साहब ने हुक्म ते रजा दो लफ्ज वरते ने जदों कि दोवां लफ्जां दा अर्थ इक्को ही है। तो भाई वीर सिंह जी ने इस फर्क नूं बड़ा स्पष्ट किया। वो कहंदे ने कि परमात्मा दे हुक्म नूं हुक्म मन के जीव दा चलना हुक्म है ते रजा नूं अरबी भाषा विच परमात्मा दी प्रसन्नता भी कहते। जो सो हुक्म देन वाले अर्थात परमात्मा दी जिस गल विच प्रसन्नता है, प्रेमी नूं उसे विच प्रसन्नता होवे, वो है तेरा किया मीठा लागे। हुण जो तू कीता है मैनूं वो मीठा लग रहा, ये रजा है। इनू होर चंगी तरह समझना है तो एक डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन। तो परमात्मा मनुख नूं कह रहा है कि तू ओ करदा है जो तू चाहता है पर हुंदा होए जो मैं चाहना। ये परमात्मा मनुख नूं कह रहा है तू करदा होए जो तू चाहता है पर हुंदा होए जो मैं चाहना। फिर समझा रहे ने तू ओ कर जो मैं चाहता फिर होवेगा वो जो तू चाहेगा। ये हुण इस नूं हुक्म इस तरह समझण नाल मैनूं लगदा है कि थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। तो इस जगत विच मनुखी जिंदगी विच हुक्म ते हुमे विच जिहड़े आपस दे विच द्वंद है, टक्कर है, इस कन्फ्लिक्ट नूं द्वंद कहंदे ने। तो गुरु साहब ने मनुख दी होमे नूं जो मनुख दी शख्सियत दा एक दा हिस्सा भी है उस नूं विनाश करन दी गल नहीं करदे, जिहड़ा मैं पहले गल करके आया। ये बड़ी बड़ी गहराई नाल इहनूं सोचना। गुरु साहब हुक्म नूं सुप्रीम मनण लई कह रहे ने, होमे नूं खत्म कर लई नहीं कह रहे, लेकिन हुक्म नूं होमे तो उत्ते रखण लई कह रहे ने। हुक्म दी हस्ती अगे होमे दी हस्ती छोटी है। हुक्म ते होमे विच एक सुरता पैदा करना चाहते हैं। ये गल बड़ी चंगी तरह समझने वाली है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ है ना लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज है ना एक कहावत। ये जिहड़ी होमे है एक करैक्ट नॉलेज दे थल्ले रखनी है, ये हुक्म दे थल्ले रखी है। होमे मोह उपजे संसारा सब जग बिन से नाम विसारा। होमे खत्म नहीं करनी क्योंकि होमे मनुख लई जरूरी है। आउट ऑफ इगोटिस्ट जिहड़ी इहदा मतलब है कि जिहड़ा होमे है ते संसारी मोह तो ये जगत उत्पन्न होया है, इसलिए होमे खत्म नहीं करनी, हुक्म दे अंडर रहना है। एक बड़ी प्यारी किसी ने गल कही सी, कहंदे तू गुस्सा कर, हंकार कर, लोभ कर, इगो बन कर तू, पर तेनू अधिकार है क्योंकि रब ने तेनू दिता है, पर पाप ना कर। जे उच्चा होना है तो उसनू नीवा होना पवेगा, वो हुक्म दे अंडर आना पवेगा। मैं गल कीती सी जिहड़ी काम क्रोध लोभ मोह हंकार है। काम दुनिया एक्सपेंड करन लई है, क्रोध वीर रस, लोभ किरत, मोह परिवार, हंकार सैल्फ रिस्पैक्ट। ये 5 चीज़ां नूं सानू समझना है। और जिहड़ी बाणी है वो सानू वार वार समझा रही है कि तू अपनी इगो रख, होमे रख, पर सुप्रीम विल दे हुक्म दे दायरे दे अंदर रख, क्योंकि हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। बड़ा स्पष्ट कर दिता है कि होना तेनू हुक्म दे अंडर ही आना पएगा। तू उस हुक्म दे अंडर ना आके हंकार दे विच तू अपनी आप दूरियां कर रहा है पर दुख पाएगा। इसलिए कहता बाहर हुक्म ना कोई। तो हुक्म मनन वाले दा जिहड़ा दृष्टिकोण है वो यूनिवर्सल आउटलुक है, सर्वव्यापी हो जाता है। जदों के होमे वाला जिहड़ा है वो संकीर्णता दे विच अपने छोटे दायरे तक सीमित रह जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब मनुख नूं विजन वाला, सर्वव्यापी दृष्टिकोण वाला जिहड़ा है मनुख बनाना चाहते हैं, उस किरण नाल जोड़ना चाहते हैं जो परमात्मा ने हर मनुख दे विच जोत दे रूप विच रखी हुई है। जात में जोत, जोत में जाता है ना, कि हर लिविंग बीइंग दे विच जोत है ते जोत विच जाता है।
तो गुरु नानक साहब उस किरण नाल तुहानू जोड़ना चाहते हैं जो परमात्मा ने हर मनुख नू जोत दे रूप विच हर मनुख दे विच रखी हुई है। रब्बी हुक्म जिहड़ा सुप्रीम विल राई सैल्फ नू सैल्फ नाल मिलाना चाहते हैं। सत संगत सत नाल संगत करना चाहते हैं। सत संगत की है? बी ट्रूथफुल टू योर सैल्फ। तो ये जिहड़ा मुलाकात है सैल्फ विद सैल्फ उस परमात्मा के हुक्म अगे समर्पण राही हो सकती है। और ये मुलाकात गुरु नानक साहब तुहानू कराना चाहते हैं। फिर जिहड़ी हुक्म की पौड़ियां च कहता हुक्म मिले वड्याई, परमात्मा ने तुहानू सोचण लई समझण लई सुरत दिती, मत दिती, मन दिती, बुद्धि दे दिती। फिर तुहानू सुतंत्र छड्ड दिता। तुहानू सुरत मत मन बुद्ध दे दिता, फिर तुहानू फ्री छड्ड दिता। हुण तुहाडे ते है, जे दुखी होना चाहते हो तो दुखी होवो, सुखी होना चाहते हो तो सुखी हो। अखां खोलना चाहो तो खोलो, बंद रखना चाहो तो बंद रखो। इहदे च परमात्मा ने तुहाडे ते कोई बार नहीं लगाया। परमात्मा दियां कुदरत दियां नियामतां नू अनुभव नहीं कर रहे तां परमात्मा या कुदरत दा अपमान नहीं, ये तुहाडा अपना अपमान है। चंगा मंदा समझण ते सोचण दी शक्ति तुहाडे कोल सी। तो गुरु नानक साहब शब्द गुरु राई ये सोझी तुहानू दे रहे ने कि वार वार इस सजी नू रिवाइव करन लई कह रहे ने। तो जब तक होमे नहीं मिटदी रब दा नाम दी प्राप्ति संभव नहीं। नाल फिर कह दिता होमे दीरक रोग है, दीरक रोग है, दारू भी समाहे, इहदे विच मेडिसिन दारू भी है। किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। ये जिहड़ा शब्द दा कंसैप्ट गुरु नानक साहब ने दिता है उसनू समझण वाली गल है। ते गुर दे शब्द मीन हुक्म अनुसारी जीवन जीना, होमे तो मुक्त होना संभव है। एक बड़ी खूबसूरत गल है, वो कहते हैं कि ऐश में यादे खुदा तैश में खोफे खुदा। जदों विलासता विचों सुख विचों तो यादे खुदा, तैश में जदों क्रोध विचों इगोइज्म विचों तो खोफे खुदा। याद भी रखना है ते खोफ भी खाना है खुदा तो। ये हमेशा ध्यान रखना। अपने ड्राइंग रूमां दे विच एक बोर्ड लगा दो, ऐश में यादे खुदा तैश में खोफे खुदा। तो ये जिहड़ा होमे तो हुक्म दा सब्जेक्ट हैगा, विषय यह है कि रियलाइजेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन द टेंपल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी वैनिशेस द बाइंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ बॉन्डेजेस। ये जिन्ने जिन्ने बंधन ने, ये सारे बंधन जिहड़े ने ये वैनिश हो सकते ने। संसारी बंधन ये परमात्मा दा जिहड़ा एहसास है वो साडे अंदर होवे। ये जिहड़ी तृष्णा है, ये जिहड़ियां डिजायर्स ने, ये इंपोसिबल डिजायर्स पैदा कर दिंदी है तृष्णा। आम बंदे दी साइकी है, मैं गालां किसी नूं कड्डां दूसरा मैनू आदर देवे, मैं दूसरे नाल नफरत करां दूसरा मेरे नाल स्नेह करे, मैं किसी ते भरोसा ना करां, मैं चाहना दुनिया मेरे ते भरोसा करे, मैं सब नूं धोखा देवां, दुनिया कोई कहे कि मैनू कोई धोखा ना देवे, मैं सब नूं दुख देवां मैनू कोई दुख ना देवे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मैनू मेरा जिहड़ा है ये त्रासदी है, ये ट्रेंड बन चुका है साडी ह्यूमन लाइफ दा। तो मैनू लगता है कि ये जिहड़ा सब्जैक्ट है उन्होंने समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गुरु नानक हुक्म नूं होमे दे विरोध विच भी रखते हैं। सिर्फ ये नहीं कहते कि इस दे नाल एक सार्थ है, विरोध विच ही रखते हैं आमो सामने। साडी मर्जी यानी मनुख दी मर्जी जो असीं दूसरियां ते चलांदे हां वो होमे है। अकाल पुरख दी मर्जी नूं हुक्म दे संकल्प नाल जोड़िया है, क्योंकि परमात्मा ने ये जो सारी क्रिएशन सिरजी है उसनूं संयम विच बन के, एक प्रबंध दे विच बन के, एक मैनेजमेंट दे विच बन के, एक सिस्टम दे विच बन के एक डिवाइन लॉ पैदा कर दिता जिसनूं असीं हुक्म कहंदे हां। तो जिहड़ी तृष्णा दी गल है, जिहड़ी होमे दी गल है, जिहड़ी डिजायर्स दी गल है, ये ध्यान रखना कि जिहड़ी डिजायर है एक बड़ी वड्डी हॉबी है। तृष्णा दी एक हॉबी है, जो मिल जाता है वासना उसनूं भुला दिंदी है, जो नहीं मिलता उसनूं भुल्लण नहीं दिंदी। ध्यान रखना कि जो चीज़ां तुसीं मिल गईयां, तृष्णावां तुहाडीआं पूरीआं हो गईयां, उन्होंने कदी भी याद नहीं रखती। जोड़ियां तृष्णावां पूरीआं नहीं होंदियां वो जिहड़ी है उसनूं कदी भुल्लण नहीं दिंदी। तो जदों मनुख होमे च होवे, हंकार विच होवे, क्रोध विच होवे, काम विच होवे, लोभ विच होवे, तां ज़मीरी तौर ते वार वार वो मरदा है। इहदे लई एक शब्द है, होमे मेरा मरी मर मर जम्मे वारो वार। फिर कह रहे ने गुर के शब्द जे मरे फिर मरे न दूजी वार, फिर वो अमर हो जाता है। जे हंकार विच अपनत्व विच दी मौत मरदा है,
और रोज रोज खवार हुंदा है, पल पल मुड़ मुड़ मरदा है, पर गुरु दे हुक्म विच जिहड़ा हुंदा है वो अमर हो जाता है। तो यही हुक्म है इहदा, जिहड़ा इसनूं जिहड़ा बड़ा जबरदस्त इहदा मैं समझदा कि एक बड़ा फिलोसफिकल जिहड़ा विशा सी इहदा। जिस तरह यूनीवर्स बनी या क्रिएट होई, जो जी भी है सब उहदे हुक्म नाल, उसदी रजा नाल बनी है। और इसे तरह अपनी क्रिएशन नाल, अर्थात जीवां नाल, जंतुआं नाल या इस कुदरत नाल, इस बनस्पति विच परमात्मा वापर रहा है और सब उहदी रजा दे विच ये सब कुछ जो कुछ असीं आस पास देख रहे हैं वो चल रहा है। और जिहड़ा हुक्म है उसदी रजा दे विच सानूं विचरना, यही साडा जिंदगी दा एक जीवन जुगत हो जानी चाहिए है। क्योंकि नानक हुक्मे जे बुझे तां होमे कहे ना कोई। जिन्हें हुक्म बुझ लिया फिर उन्होंने होमे हंकार नहीं आंदा, पर जे आ जावे तां फिर की हुंदा है, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। जे हंकार च आ गया तो चढ़े आकाश गिरावे है, और जे हुक्म च आ गया ते धरती ते आकाश चढ़ावे। फिर धरती तो आकाश दे विच चढ़ा दिंदा है रब हुक्म दे विच। हुक्म जिहड़ा है तो अखीर विच जिहदे विच हुक्म या रजा दा भाव आ जावे, वो कहंदे ने किसे रोंदे हुए दुखी दा हथ अपने हाथ विच लैके घड़ी दो घड़ी उस नाल गुजारना सतसंग है। ਇਹ सतसंग ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮਨ ਨੀਵਾ मत उच्ची, ये आइडियलिस्टिक लाइफ है। इस शिद्दत से निभा रहा हूं अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। ये जड़ा हुक्म विच आएगा उस लई मैनू लगता है कि जड़ा अज दा विषय है इसनूं असी समझिए कि एक अखीर जड़ी मैं इहदा खत्म करांगा इसनूं वो ये है इस विषय नूं कि मैन आस दे फालन रोज, एक फुल थल्ले गिरदा है ते उस नूं गिरे हुए फुल नूं पर एक बंदा पुछदा है कि डोंट यू गेट हर्ट व्हेन प्लक्ड, तू जदों अपनी टाणी तो तोड़िया जाना है तैनू हर्ट नहीं हुंदा तू? वो कहंदा नो आई फॉरगेट माई पेन थिंकिंग दैट आई एम रीजन फॉर समवन एल्स स्माइल। ये हुक्म दा एक जिहड़ा है नज़ारा हैगा। तो मैनू लगदा है कि सानू ऐसे स्कूल ऑफ थॉट, ऐसे स्पिरिचुअल कॉलेज बनाने चाहिए ने जिन्हां विच असीं ये होमे ते हुक्म दे कंसैप्ट नूं समझ सकीए। तो अज दा विशा मैं इत्थे ही खत्म करदा जी कि एक गल जरूर ध्यान रखिए कि क्रोध विच इंसाफ करन दी ताकत जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी यू विल हैव टू अडोप्ट टॉलरेंस, यू विल हैव टू शेड वायलेंस। ये जिहड़ा है जिहड़ा कौमां दे विच अज असीं डिवीजन देख रहे हैं, जिहड़ा घर घर दे विच वैर विरोध देख रहे हैं, ये इसलिए है कि असी हुक्म नूं समझ नहीं सके, उस परमात्मा दे डिवाइन लाइन डिवाइन लॉ नूं नहीं समझ सके। तो अखीर दे विच जिहड़ी है गुरबाणी दी लाइन नाल ही खत्म करांगा गल, वो है कि घर ही माए दूजे पाए, घर ही माए दूजे पाए, चानन होवे तां छोड़े होमे मेरा। तो यह है कि हर घर दे विच वो जिहड़ा हंकार है, जिहड़ियां वाइसिस ने उन्हां नूं कंट्रोल करन लई तुहाडे अंदर सब कुछ है, पर जदों अंदरों भरम निमिट जाएगा, जदों अंदरों ज्ञान आ जाएगा, तो फिर मैनूं लगदा है कि असीं इस विषय नूं समझ पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।